Hello students, in the previous video we have discussed the meaning of double entry system, its features and a brief introduction about the classification of accounts. So as you know there are three types of accounts: real, personal and nominal. Basically there are two types: personal and impersonal accounts. Impersonal accounts are further classified into two types, that is real and nominal. So we can say that there are three types of account, that is real account, personal account and nominal account. इसी ऑर्डर में ही हम आगे इन अकाउंट्स की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. Now the first account is real accounts. The accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and are the properties of business is known as real accounts. ऐसे जो भी अकाउंट्स जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं, एंड विच आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस. सो एज यू नो इन द चैप्टर बेसिक टर्म वी हैव डिस्कस दैट द टर्म that is known as the properties of the business or which can be converted into money, the term used is asset. So we can say that all the accounts of assets are covered under real accounts. As you know there are various assets like land, building, furniture, goodwill, cash. These all are रियल अकाउंट. सो आप इसको सम अप फॉर्म में ये बोल सकते हो कि जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, बेसिकली नॉन करंट एसेट्स होते हैं, वो आपके रियल अकाउंट्स होते हैं. नाउ द मेन कंसेप्ट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट. अब हमने जब मीनिंग डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये बात करी थी कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो टू अकाउंट्स को अफेक्ट करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अदर वन विल बी क्रेडिटेड. सो अब नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट कि विच अकाउंट, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल. So and its rule also. So the rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. Let's translate it in Hindi. It means जो भी एसेट आपके पास, अब रियल अकाउंट में अभी हमने डिस्कस किया, रियल अकाउंट में आपके क्या आते हैं, एसेट आते हैं. तो यहाँ पे वट का मतलब क्या है, एसेट्स. कि जो भी एसेट्स आपके पास आएंगे, कम्स इन मतलब आपके पास जो भी एसेट्स आएंगे आपने उनको डेबिट करना है, और जो भी एसेट्स आपके पास से जाएंगे, गोज आउट मतलब जो आपके पास से चले जाएंगे, आपने उसको क्या कर देना है, क्रेडिट करना है. दिस इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट. Now the next is, let's discuss some examples which will make you clear this concept and how to apply the rule. First transaction is purchased furniture for cash. Now first of all in this transaction you have to identify that due to this transaction which two accounts will be affected. When you will purchase the furniture, what will happen? Two accounts will be affected. Two accounts will be affected. Which two accounts will be affected? One is furniture, one is furniture, I will write in the short, and another one is cash. Another one is cash. Next you have to identify the nature of both of these accounts. अब फर्नीचर और कैश दोनों ही आपके एसेट्स हैं. अभी हमने डिस्कस किया जितने भी एसेट्स होंगे वो रियल अकाउंट होते हैं. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो है ये हमारे रियल अकाउंट होते हैं, ये हमारे रियल अकाउंट होते हैं. नाउ यू हैव टू अप्लाई द रूल. द रूल इज debit what comes in, credit what goes out. Now two accounts affected are furniture and cash. अब when you will purchase the furniture, जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर आपके पास आ जाएगा, यानी कि फर्नीचर comes in, ठीक है, और कैश आपके पास से चली जाएगी, कैश goes out. So as per the rule, the asset which comes in will be debited. So you can say that furniture will be debited and furniture purchase करेंगे तो you have to pay the money, cash will goes out, तो credit what goes out, so cash will be credited. So this is the process of identifying which account is debited.
आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सच अकाउंट्स, बिकॉज अभी हमने रियल अकाउंट ही डिस्कस किया है, तो रियल में एसेट्स आते हैं एंड बोथ ऑफ दीज आर एसेट्स. देन यू हैव टू अप्लाई द रूल. द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. if the asset which comes in will be debited in this transaction, furniture comes in, so furniture will be debited, and cash goes out, so cash will be credited. Now here is one more example. Purchase machinery for cash. This is also similar to previous example. Two accounts affected will be same, machinery and cash. Machinery and cash. Machinery and cash. So similarly, machinery is also an asset, so machinery is real account. Cash is also an asset, cash is real account. When you will purchase the machinery, machinery comes in, so machinery account will be debited and cash account will be credited. अभी हम सिर्फ इसको इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन ही डिस्कस कर रहे हैं. ये जो ट्रांजैक्शन है आपको नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा जनरल, उसमें बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतना ही सीख रहे हैं कि कैसे ये अंडरस्टैंड करना है दैट विच अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड. आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो बुक में जस्ट आपको इस चैप्टर में आइडेंटिफिकेशन ही है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट. बट आपको अगर आप इस तरह से अभी से ही इस चैप्टर में कर लेंगे देन इट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो दिस वाज द मीनिंग एंड रूल्स ऑफ रियल अकाउंट. So there are two types of real account, tangible. Tangible means which can be seen or touched. जिन assets को आप touch कर सकते हैं, देख सकते हैं, that are tangible assets. And the assets which can't be seen or touched, just it can be felt like goodwill, so it is an intangible. So these are types of real account. Now the next account is personal account. Personal accounts हमने इसको फीचर्स में डिस्कस किया था. पर्सनल मीन्स विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. नाउ ह्यूमन बींग्स, the accounts which relate to an individual, firm, company or an institution are called personal accounts. Like account of Mohan, Ram, Krishan, Chandra means जो भी human beings के accounts होते हैं like Ram, Sham, Mohan or any other person like X, Y, Z, उसको हम क्या बोलते हैं? personal accounts. Along with human beings accounts, इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन्स के भी अकाउंट आते हैं. जैसे कि हमने बेसिक टर्म्स में डिस्कस किया था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग. हम बिजनेस को एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं. कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जो एक्चुअल में हमारी तरह ह्यूमन बीइंग नहीं है कि हम वो देख सकता है, बोल सकता है, ऐसा नहीं है. लेकिन हमने उसको सारे राइट्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स वाले दिए हैं कि वो अपने नेम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, लोन ले सकता है, कोर्ट केस कर सकता है. ठीक है, सो सच टाइप ऑफ पर्सन्स आर नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन्स. सो द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन्स आर कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट्स. ठीक है, लाइक आपके पास आपके बिजनेस का जो नेम है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या आपका बिजनेस जो है वो उस मोहन साड़ीज के नाम से बिजनेस है, तो मोहन साड़ीज इज invested in the business, so that money is invested by some person, that is owner. So this is also real personal account. Drawings means money withdrawn by the proprietor for personal use, so that is the money which is to be drawn by a person. So drawings account are also covered under personal accounts. Now the rule of जैसे कि हमने रियल में रूल किया, पर्सनल अकाउंट में भी रूल होता है. द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इट मीन्स रिसीवर मतलब हम रिसीवर वर्ड किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, सिमिलरली गिवर भी किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. तो जिस पर्सन को कुछ रिसीव हो रहा होगा उसको आपने डेबिट करना है, और जो पर्सन मनी दे रहा होगा या उसको कोई चीज़ मतलब कोई एसेट दे रहा होगा या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो दे रहा होगा, तो उस पर्सन को हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है. रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट. Let's understand this with the help of one example. So here
transaction is received cash from Ram. First of all, you have to identify which two accounts will be affected. Accounts affected will be Ram and cash. Then next you have to identify the nature of both of these accounts. Ram is a person, so it is personal account. I'll write in the form of P. P means personal account. Cash, अभी हमने डिस्कस किया, कैश इज एन एसेट, सो कैश इज अ रियल अकाउंट. कैश इज रियल अकाउंट. अब राम के लिए यानी कि अब यहाँ पे दो रूल्स अप्लाई होंगे. विच टू रूल्स विल बी अप्लाइड? राम के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा और कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल लगेगा. अब यहाँ पे दोनों के रूल्स लगेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अप्लाई द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. हमें राम से पैसे मिल रहे हैं. हमें राम से पैसे जो है और रियल अकाउंट और गिवर को हम क्या करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो हम राम के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. नाउ कैश. अब कैश रियल अकाउंट है तो रियल का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ अब हमें जब राम से पैसे मिलेंगे तो कैश विल कम्स इन, कैश हमारे पास आ जाएगी. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो जो हमारे पास आएगा उसको हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है. सो इन दिस ट्रांजेक्शन राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. नाउ सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड कैश टू मोहन. In this also two accounts will be affected, that is Mohan and cash. Mohan and cash. So similarly मोहन हम मोहन को पैसे दे रहे हैं. तो मोहन हमारा मतलब मोहन पर्सनल अकाउंट हो गया और कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया. अब हम मोहन को पैसे दे रहे हैं, सो मोहन जो है वो रिसीवर हो गया. मोहन को पैसे मिल रहे हैं. सो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर. सो मोहन के अकाउंट को हमने क्या कर देना है, डेबिट, क्योंकि मोहन इज द रिसीवर ऑफ मनी. Obviously when we pay cash to Mohan, cash will goes out as per the rule of real account, credit what goes out. So आपने करना क्या है, जब दो अकाउंट एक अलग अलग आ जाएं तो what you have to do is you have to apply the rule of both the accounts, personal and real. पर्सनल मोहन है तो आपने अपने माइंड में उसको पर्सनल वाला रूल अप्लाई करना है. आपने इसमें सोचना है कि मोहन इज द रिसीवर और गिवर. ठीक है, तो मोहन इज in this transaction Mohan is receiver, so debited. Now when another you have to think in your mind that whether cash is coming or cash is going out. cash आ रही है आपके पास या जा रही है. ठीक है, so in this transaction cash is going out, so it will be credited. सो जो नेचर है अकाउंट का उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें रूल अप्लाई करना है. ठीक है, पर्सनल है तो पर्सनल का रूल, रियल है तो रियल का रूल. तो रिसीवर गिवर पर्सनल में आ जाएगा, कम्स इन गोज आउट वो आपका रियल में लग जाएगा. सो दिस वाज द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. वन इज नेचुरल पर्सनल, artificial personal and representative personal. Natural personal means which are account of human beings जो living beings हैं वो natural person है. artificial person मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, like the account of any business. ठीक है, any company, any institution, that is artificial person. Then is representative personal. Representative personal means anything which represents some group, like outstanding or prepaid. Outstanding expenses means the expenses which are yet to be paid. ऐसे expenses जो due हो चुके हैं और अभी हमने pay करने हैं. तो outstanding expenses is representing a group of such expenses that are yet to be paid. So such type of things are known as representative